Namaste and welcome to Government Service Rule Academy. As government employees, our service conditions are governed by a complex web of rules. On this channel, we explain rules with simple, realistic, and practical examples of our day to day life scenario so you can apply them with confidence in your professional life. A standard disclaimer: all images those are used in this video are generated by AI with the help of Notebook LM, Google Gemini, and other AI sources. In this inaugural video, we begin with the CCS Leave Rule 1972, focusing on concept of earned leave. Please note that the explanation in this video are based on the CCS Leave Rules 1972 as updated up to 24th September 2024. For your reference, the link to the official source has been provided in the video description below. I'm your host, and today we begin our mission: clarity in rules, precision in administration. Let's dive into the facts. लीव रूल्स में रूल नंबर 26, 27 एंड 28 ये तीन रूल्स हैं जो ईएल के साथ डील करते हैं। रूल 26 उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है जो नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। रूल 28 उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है जो वैकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ये 2018 में एक नोटिफिकेशन से 7th सीपीसी के रिकमेंडेशन पर लागू हुआ है। रूल 27 ईएल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उस पर बेस्ड है। लेट्स वी स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट रूल, रूल 26, ईएल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन डिपार्टमेंट्स अदर देन वैकेशन डिपार्टमेंट्स। रूल 26 सब रूल 1 क्लोज ए सब क्लोज 1 इसके अनुसार क्या है? द लीव अकाउंट ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन ए मिलिट्री ऑफिसर who is serving in a department other than a vacation department shall be credited with EL in advance in two installments of 15 days each on the first day of January and 1st July of every calendar year. Look, as per this rule, on the first day of January, we credit 15 days of EL in advance. In the same way, on the first day of July, we credit 15 days of EL in advance in employee account. So, annually, there are the 30 ELs are credited in employee account. Subclause 2. When a government servant joins a new post without availing the full joining time for reasons that he is ordered to join the new post at a new place of posting without availing of the full joining time to which he is entitled, or he proceeds alone to the new place of posting. He joins the post without availing the full joining time and tax his family later within the permissible period of time for claiming the travelling allowance for the family. The number of days of joining time as admissible under sub rule 4 of rule 5 of the CCS Joining Time Rules 1979, subject to the maximum of 15 days reduced by the number of the days actually availed of, shall be credited to his leave account as EL, provided that the EL at his credit together with the unavailed joining time
allowed to be so credited shall not exceed 300 days. Let's with an example we understand सब क्लोज 2। राजेश जी हैं जिनका ट्रांसफ़र हुआ, उन्हें 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिला, उन्होंने 2 दिन अवेल कर लिए और 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम ईएल के फॉर्म में क्रेडिट करने के लिए कह दिया। उनके पास पहले से 250 ईएल है, 10 दिन और क्रेडिट करेंगे तो अब उनका बैलेंस 260 ईएल्स हो जाता है। दूसरी ओर मिस अनीता है, उनका ट्रांसफ़र हुआ, उन्हें 10 दिन ज्वाइनिंग टाइम मिला, उन्होंने एक भी दिन अवेल नहीं किया और पूरा 10 दिन क्रेडिट करने के लिए कह दिया। उनके अकाउंट में पहले से 295 ईएल प्रेजेंट है, तो 295 ईएल के साथ अगर 10 दिन का टाइम ऐड करते हैं तो वो 305 हो जाता है। एज पर रूल 300 से ज़्यादा बैलेंस ईएल का नहीं हो सकता है। सो उनकी 5 ईएल या 5 ज्वाइनिंग टाइम अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम लैप्स्ड हो जाएगा और उनका नया अकाउंट बैलेंस 300 ईएल होगा। सब क्लोज बी, the leave at the credit of a government servant at the close of previous half year shall be carried forward to the next half year subject to the condition that the leave so carry forward plus the credit for the half year do not exceed the maximum limit of 300 days। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है मिस्टर आकाश, उनके अकाउंट में 290 डेज ईएल प्रेजेंट है ऑन दिसंबर 31। अब 1 जनवरी को क्या होगा कि उनके अकाउंट में 15 ईएल क्रेडिट की जाएंगी। उसमें ईएल को इस टाइप से लिखा जाएगा 298 प्लस 15 डेज। अगर मिस्टर आकाश कभी भी लीव लेते हैं, जैसे उन्होंने 10 दिन का लीव लिया, तो उनके 10 दिन की लीव को जो ये 15 डेज है उनमें से माइनस किया जाएगा, ना कि 298 डेज वाली ईएल में से माइनस करना है। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 298 प्लस 5 डेज। 30 जून को क्या होगा कि 298 प्लस 5 को ऐड करेंगे तो देखते 303 डेज है और एज पर रूल अकाउंट में 300 से ज़्यादा ईएल नहीं हो सकती है। तो इन 303 को 300 में चेंज कर दिया जाएगा, इससे कि इनके 3 ईएल लैप्स हो जाते हैं। एम्प्लॉय के अकाउंट में 285 से ज़्यादा ईएल होने पर ही सब क्लोज बी लागू होता है। यदि एम्प्लॉय के अकाउंट में 285 या उससे कम ईएल होती है तो उनका 15 डेज को डायरेक्टली ऐड करके ईएल लिख दी जाती है। जैसे कि इस केस में 285 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 300 डेज बना दिए जाते हैं। अब ये कोई भी लीव लेंगे तो इनका जो 300 डेज का मैन अकाउंट है उसमें से लीव डेबिट होंगी। सब क्लोज सी, where a government servant not in permanent employee or quasi-permanent employee is appointed without interruption of service substantively to a permanent post or declared as quasi-permanent, his leave account shall be credited with the earned leave which would have been admissible if his previous duty had been rendered as a government servant in permanent employ diminished by any year already taken। इट्स मीन यहाँ पे हमें उसे रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट देना है। लेट्स वी अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। मिस्टर अक्षत ज्वाइन किया उन्होंने गवर्नमेंट को एज ए टेम्पररी एम्प्लॉय। 2 साल उन्होंने वहाँ सर्विस की। 2 साल सर्विस में उनको कुछ ईएल मिली, उसमें से उन्होंने 10 डेज ईएल अवेल कर ली। अब उनका बैलेंस है 30 डेज ऑफ ईएल, यानी उनके पास 40 ईएल थी, 10 उन्होंने अवेल कर दिया, अब 30 बची। नाउ विदाउट एनी इंटरप्शन इन द सर्विस
गवर्नमेंट ने उनको परमानेंट कर दिया। अब ये रूल यहाँ पर लाइट में आता है। ये रूल क्या कहता है कि अगर मिस्टर अक्षत परमानेंट होते तो उन्हें 2 साल में कितना ईएल मिलता? 60 डेज का मिलता। उन्होंने ऑलरेडी कितना अवेल कर लिया? 10 डेज का अवेल कर लिया। सो 60 माइनस 10, 50। तो उनका अब अकाउंट बैलेंस जो होगा ईएल का वो 50 डेज का होगा। ये रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट दे रहा है। नाउ सब क्लोज टू, where a government servant has availed of extraordinary leave since the date of permanent appointment or quasi-permanent appointment, such leave may, subject to the provisions of Rule 10, commutation of one kind of leave into another, be converted into earned leave to the extent it is due and admissible as a result of recasting of his leave account. देखिए इस केस में मिस प्रिया है, उनके पास 5 डेज का ईएल है। ड्यू टू इलनेस शी अवेल्ड 20 डेज ऑफ लीव। अमंग दोज 20 डेज 5 ईएल एंड 15 ईओएल। ईओएल की वजह से उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिला इन 15 दिन का। When मिस प्रिया इज अपॉइंटेड सब्सटेंटिवली, परमानेंट हो गई है, तो उनका लीव अकाउंट फिर से रिकास्ट किया जाएगा। और रिकास्ट करने पर देखिए हमें पता चल रहा है कि उनके लीव अकाउंट में उस टाइम पे 25 डेज ईएल होना चाहिए था। अब मिस प्रिया क्या कर सकती हैं कि अपनी जो 15 डेज की ईओएल को कम्यूट करवा सकती हैं 15 डेज के ईएल में, जिससे क्या बेनिफिट होगा उन्हें? उन्हें इन 15 डेज का पेमेंट मिल जाएगा। सब क्लोज डी, a person spent in foreign service shall count as duty for purpose of this rule if a contribution towards leave salary is paid on account of such period। देखिए इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप केवीएस के प्रिंसिपल हैं और आपको सीबीएसई भेज दिया गया है एज ए डेपुटेशन कि 2 साल के लिए आपको वहाँ रहना है। अगर सीबीएसई मंथली केवीएस को लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन जो कि प्रेजेंट में 11% होता है बेसिक पे का, रेगुलरली पे करती है, तो आपके अकाउंट में 30 डेज का ईयरली क्रेडिट होता रहेगा। अगर सीबीएसई एलएससी नहीं देती है तो आपको ये ईएल का क्रेडिट नहीं मिलेगा। Look, there is an exception in Rule 26, Sub-Rule 1. The EL admissible to a government servant of non-Asian domicile recruited in India who is in continuous service from a date prior to the 1st February 1949 and is entitled to leave passes is 1/7 of the period spent on duty, and he ceases to earn such leave when the earned leave due amount to 180 days। नॉर्मल एम्प्लॉय के केस में वो कितना था? 300 डेज, लेकिन इनके केस में कितना है? 180 डेज। लेट्स वी अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। इस रूल के अंडर आने वाले एम्प्लॉय जनरली ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे जो कि इंडिया में रिक्रूटेड थे बिफोर 1 फेब 1949, और उन्हें अपने घर यानी कि ब्रिटेन आने जाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लीव पासेस दिया जाता था। इनकी जो ईएल का कैलकुलेशन होता था वो 1/7 के फार्मूले से होता था। मतलब 1 साल अगर इन्होंने काम किया तो इनको नियर अबाउट 52 के समथिंग लीव मिला करती थी। बट ये लोग क्या कर सकते थे? मैक्सिमम 180 डेज का लीव ही एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जबकि हमारे केस में नॉर्मल एम्प्लॉय के केस में क्या है कि वह 300 डेज का ईएल एक्यूमुलेट कर सकता है। रूल 26 सब रूल 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 7 एंड रूल 39 एंड सब रूल 1 एंड 3 of the rule, the maximum EL that may be granted at a time shall be, कितनी हो सकती है?
180 days in case of any government servant employed in इंडिया। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो 180 दिन से ज़्यादा की ईएल नहीं मिलेंगी। या फिर 150 डेज जो किसमें थे हमारे नॉन एशियन डोमिसाइल वाले थे जिनका अभी हमने बात किया। देखिए मैक्सिमम 180 डेज की लीव ग्रांट की जा सकती है बट एम्प्लॉई उसके लिए क्लेम नहीं कर सकता है। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय का रिटायरमेंट या उसका फाइनल सेसेशन या फिर वो रिज़ाइन कर रहा हो उसके आगे के पीरियड की लीव ग्रांट नहीं करते हैं। जैसे कि 10 दिन में उसका रिटायरमेंट होने वाला हो एम्प्लॉय का, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी 11 दिन की लीव ग्रांट कर दे। इन सब चीज़ों का हमें इस रूल के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। रूल 26 सब रूल 3 EL may be granted to a government servant in class 1 और class 2 जिन्हें आजकल हम लोग ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स कहते हैं, और टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट mentioned in the exception to sub rule 1 for a period exceeding 180 days but not exceeding 300 days if the entire leave so granted or any portion thereof is spent outside India, Bangladesh, Bhutan, Burma, Sri Lanka, नेपाल, पाकिस्तान। बर्मा को हम अभी म्यांमार कहते हैं। ये सभी कंट्रीज साउथ एशिया में आती हैं। जनरली ये शार्क नेशन से। provided that where earned leave for a period exceeding 180 days is granted under this sub-rule, the period of such leave spent in India shall not in the aggregate exceed the aforesaid limits. देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स को 180 दिन से ज़्यादा की लीव ग्रांट की जा सकती है 300 दिनों तक के लिए। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि वो 180 दिन से ज़्यादा इन कंट्रीज़ में स्पेंड नहीं करेंगे। बाकी का टाइम अपना इन कंट्रीज़ के अलावा बाकी दूसरी जगह पे स्पेंड करेंगे। चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। एक ग्रुप ए ऑफिसर है मिश इशिका। इन्होंने 300 दिन के लिए अप्लाई कर दिया लीव का। सिनेरियो ए है इनका। इनका कहना है कि 150 डेज इंडिया में स्पेंड करेंगी और बाकी के डेज ये अपने लंदन में स्पेंड करेंगी। तो इनकी ये लीव अलाउडेड है, परमिसेबल है। अगर ये कहें कि ये 200 डेज अपने इंडिया में स्पेंड करेंगी और बाकी के 100 डेज दूसरी कंट्रीज में स्पेंड करेंगी, तो ये वाली लीव इनको अलाउड नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में 180 डेज से ज़्यादा स्पेंड करना अलाउड नहीं है इस केस में। नाउ रूल 27 कैलकुलेशन ऑफ ईएल। इसमें एक बात का आपको सबको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग ईएल कैलकुलेट करेंगे तो उनका मंथ कंप्लीट होना चाहिए। मतलब वो फर्स्ट डे ऑफ मंथ को एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया हो और लास्ट डे ऑफ मंथ तक उसने काम किया हो, तो ही वो उसका कंप्लीटेड मंथ काउंट होगा। सब रूल 1 EL shall be credited to the leave account of a government servant at the rate of 2.5 days for each completed calendar month of service which he is likely to render in a half year of the calendar year in which he is appointed। देखिए एक मंथ अगर कंप्लीट होता है तो 2.5 डेज उनको ईएल मिलती है। अगर किसी एम्प्लॉय ने 3 महीने काम किया तो उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको नियरेस्ट डिजिट में राउंड ऑफ करके ईएल क्रेडिट कर दी जाएंगी। इनके केस में इन्हें 8 डेज का ईएल मिलेगा। चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसे और अच्छे से समझते हैं। मिस्टर आकाश ने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया ऑन द 4th मार्च। तो हम इसका हाफ ईयर में जो जनवरी से जून तक होता है ईएल काउंट करेंगे। इन्होंने मार्च को ये ज्वाइन किया है 4th को, तो ये कंप्लीटेड मंथ नहीं है। इनके कंप्लीटेड मंथ कौन से होंगे? अप्रैल, मई और जून। इन्होंने 3 मंथ की सर्विस कंप्लीट की है, इसलिए इन्हें 7.5 डेज का ईएल मिलेगा। जैसे हम लोग 8 डेज में राउंड ऑफ कर देंगे।
अब क्या होगा, जैसे ही 1 जुलाई आएगा तो इनके अकाउंट में ऑटोमेटिकली 15 डेज का एडवांस ईएल क्रेडिट हो जाता है। सब रूल 2 क्लॉज ए, the credit for the half year in which a government servant is due to retire or resign from the service shall be afforded only at the rate of 2.5 days per completed calendar month up to the date of retirement or resignation. Let's understand with an example. Mr. Jatin, जिनका रिटायरमेंट हो गया या उन्होंने रिजाइन कर दिया है अप्रैल 20 को, तो अप्रैल का महीना उन्होंने पूरा काम नहीं किया, कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं है। सो उनका कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ कौन सा है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सो 3 महीना उन्होंने कंप्लीट किया है। सो 2.5 की रेट से उनको 8 ईएल क्रेडिट की जाएंगी ओनली। क्लॉज बी, when a government servant is removed or dismissed from service, credit of EL shall be allowed at the rate of 2.5 days per completed calendar month up to the end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed from service. Let's understand with an example. मिस्टर जतिन है, उनको 31 अक्टूबर को रिमूव या डिसमिस कर दिया गया सर्विस से। उनका मंथ तो कंप्लीट है ये वाला, बट एज पर रूल क्या होगा, उनका अक्टूबर का मंथ काउंट नहीं होगा। कौन से मंथ काउंट होंगे, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सो उनके 3 मंथ काउंटेड होंगे पूरे। 2.5 की रेट से 8 ईएल ही उनके अकाउंट में क्रेडिट की जाएंगी। अक्टूबर काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिसमिसल और रिमूवल हुआ है। अगर डिसमिसल या रिमूवल नहीं हुआ होता तो 31 अक्टूबर को सर्विस एंड होने की वजह से इनका अक्टूबर का मंथ काउंट किया जा सकता था। क्लॉज सी, when a government servant dies while in service, credit of EL shall be allowed at the rate of 2.5 days per completed month of service up to the date of death of the government employee. ये 2011 में इनकॉर्पोरेट किया गया है। इससे पहले क्या होता था कि अगर एम्प्लॉय का डेथ लास्ट दिन भी हुआ है मंथ के, तो भी उसका वो महीना काउंट नहीं किया जाता था। अब इससे क्या होगा फायदा, अगर लास्ट डे को एम्प्लॉय का डेथ होता है तो उसका वो कंप्लीटेड मंथ काउंट किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। किसी एम्प्लॉय की 31 अक्टूबर को डेथ हो जाती है तो क्या होगा, तो उनका जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये पूरा काउंट किया जाएगा। 4 महीने कंप्लीटेड मंथ है तो 2.5 की रेट से उनको 10 डेज का ईएल क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर एम्प्लॉय की डेथ मंथ के लास्ट डे को नहीं होती है, यानी कि 30 अक्टूबर को हो गया या 29 को हो गया या इससे पहले किसी डेट में हो गया, तो अक्टूबर का महीना काउंट नहीं होगा, वो कंप्लीटेड मंथ नहीं है। वीडियो को पॉज करके सब रूल 2 के क्लोज ए, बी और सी को आप इस ग्राफिक्स की हेल्प से और अच्छे से समझ सकते हैं। सब रूल 3, if a government servant has availed of extraordinary leave and or some period of absence has been treated as dies non in a half year, the credit to be afforded to his leave account at the commencement of the next half year shall be reduced by 1/10 of the period of such leave and or dies non subject to a maximum of 15 days। यानी अगर कोई एम्प्लॉय ईओएल पे रह गया या डाइजनोन हो गया किसी भी रीजन से, तो नेक्स्ट जो हाफ ईयर होगा उसमें हम उसका लीव जो क्रेडिट करेंगे वो 1/10 से कम कर देंगे। लेकिन कितना कम कर सकते हैं, मैक्सिमम 15 डेज ओनली, क्योंकि हम उसे 15 डेज ही क्रेडिट करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिए मान लिया कि किसी ने 20 दिन का ईओएल लिया, तब उसका कितना रिडक्शन होगा, 20 इंटू 1/10, 2 डेज का रिडक्शन होगा। तो अब क्या होगा कि 1 जुलाई को क्या किया जाएगा, उसको 15 की जगह सिर्फ 13 दिन का ही ईएल क्रेडिट किया जाएगा। नाउ द रूल 4,
of this. While affording credit for EL, fractions of a day shall be rounded off to the nearest day. हमें क्या करना है, उसे राउंड ऑफ कर देना है. 0.5 या उससे ज़्यादा हो तो नेक्स्ट नंबर, 0.5 से कम होने पर प्रीवियस नंबर में हमें लाना होता है. Now the rule 28 of leave rules. EL for persons serving in vacation department like school, college, university or judicial departments. Subrule 1, clause A. The leave account of every government servant other than military officer who is serving in a vacation department shall be credited with the EL in advance in two installments of 5 days each on the first day of January and July of every calendar year. जबकि नॉन वैकेशन वालों के लिए क्या था, 15 डेज का था. 15 डेज प्लस 15 डेज. जो वैकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके लिए क्या करना है, ऑन एवरी 1 जैन एंड 1 जुलाई को हम लोग 5-5 ईएल उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं. तो पूरे साल में उनको टोटल 10 डेज का ईएल क्रेडिट किया जाता है. क्लॉज बी. In respect of any year in which a government servant avails a portion of the vacation, he shall be entitled to additional EL in such proportion of 20 days as the number of the days of vacation not taken bears to the full vacation, provided the total EL credited shall not exceed 30 days in a calendar year. ये रूल क्या कहता है कि हमें 10 दिन का ईएल तो मिलता ही है. अगर वैकेशन में हम लोगों से काम करवाया जाता है तो 20 डेज का जो ईएल है वो प्रोपोर्शन में हमें दे दिया जाएगा. लेकिन देते टाइम ये ध्यान रखना है कि किसी भी कंडीशन में एक साल में 30 से ज़्यादा ईएल नहीं होना चाहिए. चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लिया किसी डिपार्टमेंट में 60 डेज का समर वेकेशन है और वहाँ पर क्या हुआ कि 15 डेज के लिए काम पे लगाया गया आपको. 16 डेज का वेकेशन था, आपने 15 डेज वहाँ पर वेकेशन में काम किया, तो आपको कितना ईएल मिलेगा, 20 ईएल जो होता है हमें प्रोपोर्शन में देना होता है. 20 इंटू 15/60, तो हमें 5 दिन का ईएल हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. तो 10 हमें हर साल मिलता ही था, 5 हमें वेकेशन में काम करने से मिला, तो टोटल हमारे पास हो गए 15 डेज. ये जो रूल है इसका ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है. जैसे इन केस ऑफ केवीएस, तो केवीएस के केस में क्या है, वहाँ पर 2/5 करके आपको ईएल दिया जाता है वेकेशन में काम करते हैं. तो शर्त क्या है उसके लिए कि मिनिमम 10 डेज आपको काम करना होगा वहाँ पर और कम से कम आपकी 1 साल की सर्विस हो जानी चाहिए. जबकि नवोदय में क्या होता है, वहाँ पर 2/6 करके आपको ईएल दी जाती है. 10 दिन काम वहाँ भी होगा और 1 साल की सर्विस आपकी पूरी हो जानी चाहिए. क्लोज सी. If in any year the government servant does not avail any vacation, EL will be as per rule 26 instead of clause A and B. यानी अगर आपने वेकेशन अवेल ही नहीं करी है, पूरा वेकेशन काम किया है, तो आपको रूल 26 के अकॉर्डिंग 15 + 15 ईएल करके क्रेडिट किया जाएगा. अब इस पर्पज़ के लिए ईयर का मतलब क्या है, constituted not as meaning a calendar year in which duty is performed but as meaning 12 months of actual duty in a vacation department. Look with an example. एक केवीएस टीचर है, उनके स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है. उन केवीएस टीचर को कह दिया गया कि आप एज ए प्रिंसिपल आप स्पेशल ड्यूटी करेंगे और आप इंचार्ज प्रिंसिपल है स्कूल के. अब टीचर ने अगर क्या किया, कोई भी वैकेशन या ब्रेक अवेल नहीं किया है और पूरे 12 मंथ उन्होंने काम किया है, तो उनको क्या किया जाएगा कि 30 डेज का ईएल उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा. Not 1. A government servant entitled to vacation shall be considered to have availed a vacation or a portion of a vacation unless he has been required by journal or special order of a higher authority to forego such vacation
or portion of a vacation, provided that if he has been prevented by such an order from enjoying more than 15 days of the vacation, he shall be considered to have availed himself of no portion of the vacation. अगर हायर अथॉरिटी के ऑर्डर के बिना आप वैकेशन में कोई काम करते हैं तो उसे वॉलेंटियर वर्क समझा जाता है और उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा ईएल नहीं दी जाएगी। अब वैकेशन अवेल की है या उसका पोर्शन अवेल किया, उसको कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए, अगर 16 डेज या उससे ज़्यादा के लिए एम्प्लॉय ने वैकेशन को अवेल किया है तो हम लोग मानते हैं उसने एक पोर्शन अवेल कर लिया है, तो उनको सिर्फ प्रोपोर्शनल ईएल मिलेगा वैकेशन में काम करने का। अगर एम्प्लॉय ने 15 डेज या उससे कम दिनों के लिए वैकेशन एंजॉय किया है तो हम लोग मानते हैं कि उसने कोई भी पोर्शन उसका अवेल नहीं किया है, तो उसको रूल 26 के अकॉर्डिंग 30 डेज का ईएल दिया जाता है। Note 2. When a government servant serving in a vacation department proceeds on leave before completing a full year of duty, the earned leave admissible to him shall be calculated not with reference to the vacations which fall during the period of actual duty rendered before proceeding on leave, but with reference to the vacation that falls during the year commencing from the date on which he completed the previous year of duty. Let's be understand with help of an example of this not to. मान लिया एक टीचर है मिस्टर अमित, वो प्रिंसिपल के फॉर्म में काम कर रहे थे। 30 जून को उनको पूरा एक साल हो गया है काम करते हुए। तो अब उनका नेक्स्ट ईयर कब से कब स्टार्ट होगा? तो उनका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा जुलाई 1 2025 से स्टार्ट होगा। अब उनका ड्यूटी पीरियड क्या होगा? फिर उन्होंने क्या किया कि 1 जुलाई 2025 से काम करना स्टार्ट किया और 31 मार्च 2026 तक उन्होंने 9 महीना रेगुलर काम कर लिया। अब वो कहना है उनका कि वो लीव पर जाना चाहते हैं, एक लॉन्ग लीव पर जा रहे हैं, तो उनको जो मिलने वाली जो ईएल होगी वो कैसे रेगुलराइज होगी? उसमें हमें कौन सा वैकेशन देखना है? वैकेशन जो 2025 में आया वो देखना है, या जो वैकेशन 2026 में आ रहा है हमें वो देखना है? तो एज पर दिस रूल और एज पर दिस नॉट टू हमें क्या देखना होगा कि जब उनका एक साल का सर्विस स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ है? वो जुलाई 1 2025 से स्टार्ट हुआ। इसके बाद में जो 12 मंथ आ रहे हैं, अगर उस पोर्शन में कोई वैकेशन आता है तो उस वैकेशन पीरियड को हमें देखना है उनकी ईएल को कैलकुलेट करने के लिए। इस केस में क्या होगा, उनका जो समर वैकेशन है 2026 का, उसे हमें देखना होगा उनकी ईएल कैलकुलेट करने के लिए। सब रूल 2, vacation may be taken in combination with or in continuation of any kind of leave under these rules, provided that the total duration of vacation and earned leave taken in conjunction, whether the EL is taken in combination or with in continuation of other leave or not, shall not exceed the amount of EL due and admissible to the government at a time under rule 26। चलिए एक एग्जांपल से इस रूल को समझते हैं। टीचर है मिस सुनीता, उनके अकाउंट में 10 डेज का ईएल है, 40 डेज का वैकेशन आ रहा है। टीचर 40 डेज के वैकेशन के साथ में 5 डेज का ईएल अवेल करना चाहते हैं, तो टोटल वो 45 डेज के लिए एब्सेंट रहेंगे यहाँ पर। इस केस में उनका लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि उनके लीव अकाउंट में 45 डेज से कम की ईएल प्रेजेंट है। अगर उनके अकाउंट में 45 डेज या इससे ज़्यादा की ईएल होती तो उनका ये लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सकता है। सब रूल 3, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके अकाउंट में जो वैकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उनके अकाउंट में भी मैक्सिमम 300 डेज का ईएल ही हो सकता है। दूसरा खास बात क्या है कि जो अनअवेल्ड पोर्शन है हमारे ज्वाइनिंग टाइम का, उसे भी हम यहाँ पर क्रेडिट करवा सकते हैं एज पर सब क्लोज 2 ऑफ क्लोज ए ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 26। सो दैट्स ऑल।
That brings us to the end of our deep dive into EL for both regular and vacation staff. Understanding these rules 26, 27 and 28 ensure that your hard earned leave is credited correctly and managed without any administrative hurdles. Don't forget to check the description box for the official link to the CCS Leave Rules 1972 updated as of September 24, 2024. Thank you for watching. Remember, clarity in rules, precision in administration, professional excellence. I will see you in the next video where we will decode the rules of half pay leave mean HPL. Jai Hind.